डिस्कस करेंगे pseudo first order reaction, molecularity and the order of reaction. So what is the molecularity? The number of reacting species, atom, ions or molecule taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction. It means simultaneous collision. During a reaction when the molecules or atom or particles colliding to each other simultaneously, this are called molecularity. कि कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड molecularity. Some important points of molecularity. It is a theoretical concept. Second, molecularity cannot be zero. It obviously the half of the atom or particle or zero particle cannot convert into product, so it cannot be negative. Fractional. Molecularity cannot be more than 3. Because why? Because more than 3 molecules or the particles or ion cannot mutually collide with one another simultaneously. Okay, it is very difficult. 3 particles, maximum 3 particles can collide simultaneously with each other during a reaction. So the molecularity cannot be more than 3. Next is the order of reaction. So sum of the power of concentration terms. Sum of the power of concentration terms involved in rate law expression is called order of reaction. Consider a reaction A. Consider reaction XA plus YB gives C. Okay, so consider reaction. Now the rate law expression for that is R equal to K A to the power X and B to the power Y. Order of the reaction become X plus Y. This is the rate law expression, sum of the power as given in rate law expression. So order of reaction is X plus Y. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? तो इट इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. सेकेंड वन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल एंड इट कैन बी ग्रेटर देन ज़ीरो. तो जो पॉसिबल वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी, एंड द ग्रेटर देन 3 वैल्यू इज ऑल्सो possible for the order of reaction. The order of reaction is simply the sum of the power of concentration terms involved in rate law expression. We can understand with the help of this example. Now, first example is hydrogen peroxide dissociate on heating to give H2O and oxygen. If you write rate expression, R equal to K H2O2 power 1. So here is the power 1, so the order of reaction is 1. In the second equation, 2HI converts to H2 plus I2. अब यहाँ हम लिख रहे हैं ऑर्डर 2 है. क्यों? क्योंकि अगर इसका हम रेट एक्सप्रेशन लिखे तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? R इक्वल टू कॉन्स्टेंट HI power 2. तो power is 2. That's why the order of reaction is 2. In third case, 2NO2 reacts with F2 to form 2NO2. हमने क्या पढ़ा कि रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट. तो NO2 when reacts with F2 form NO2F, it is a multi-step process, two-step process. In the first step, NO2 reacts with F2 to form NO2F and F. And in the second step, NO2 reacts with F to form another NO2F. So in the first equation is the slow step, and slow step is always the rate determining step. ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हम हमेशा स्लो स्टेप के बेस पे निकालते हैं. तो इसमें अगर हम देखें तो फॉर द स्लो स्टेप, वैसे ऐसी बात नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम हर स्टेप के लिए सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फॉर द स्लो स्टेप the order of reaction is 2. Why? Because rate expression become R K NO2 power 1
and F2 power is also 1. The order of reaction become 1 plus 1 equal to 2. So clearly mentioned here कि sum of the power as given in rate law expression is called order of रिएक्शन. तो यहाँ पे जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सी है? स्लोएस्ट स्टेप है. और रेट एक्सप्रेशन हमेशा स्लोएस्ट स्टेप के बेस पे लिखा जाता है, इसलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा? आर एन ओ टू की पावर 1 एफ टू की पावर 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम 2. क्लियर? नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो टाइप it may be zero order of reaction, first order of reaction, second order of reaction, third order of reaction, and even a fractional order of reaction. Zero order means if the reaction means that the rate of reaction is independent of the concentration of the reactant. अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. जितनी भी रिएक्शन कैटालिटिक रिएक्शंस होती है जो कि इनिशिएटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, वैसी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है बिकॉज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन. सेकेंड हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इफ द रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, देन रिएक्शन इज कॉल्ड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. as like H2O2, this is the first order dissociation of H2O2 or decomposition of H2O2 is the first order of reaction. Second order of reaction, if the reaction depending on 2 molar concentration. Suppose if you write R equal to K, A to the power 1 and B to the power 1, so the order become 1 plus 1, so order of reaction is 2. So when the reaction depending on 2 molar concentration of the reactant is called second order of reaction. Third order of reaction means when the molar concentration, when the rate is depending on 3 molar concentration of reactant. It may be A to the power 1, B to the power 2, or A to the power 2 and B to the power 1. Maybe any other equation, the 3 molar concentration of one substance this will decompose or convert into another product. So when the depending on the molar concentration of 3 molar concentration of the reactant, then the order of reaction is called third order. And when the fractional concentration, and it depending on the fractional concentration, then the order of reaction is called fractional order of reaction. Okay. Most important is how to calculate the unit of the rate constant. Now consider a reaction AA BB gives CC DD, and the rate expression is, suppose here is A and small b is a numerical coefficient and actual coefficient is x and y. So the rate of reaction rate law is become R rate is equal to K A to the power x and B to the power y. तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम x प्लस वाई एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? यूनिट निकालनी है किसकी? के की. तो के इक्वल टू बिकम, के क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट अपॉन ए टू दी पावर एक्स एंड बी टू दी पावर वाई. ठीक है. तो हमारे पास जो रेट होगा वो क्या होगा? के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए टू दी पावर एक्स एंड बी टू दी पावर वाई. अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट रख देंगे. वी नो डैट द यूनिट ऑफ रेट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेट के, रेट की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड. ओके. एंड हेयर इज ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई. अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर टू द पावर एक्स इंटू मोल पर लीटर टू द पावर वाई. तो मोल पर लीटर तो कंसंट्रेशन. तो यस रेट यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? कंसंट्रेशन बाय टाइम इनटू 1 बाय कंसंट्रेशन. तो अगर इस पूरे वैल्यू को गौर से देखें तो मोल पर लीटर की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 माइनस एन. क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी? 1 माइनस एन इंटू पर सेकेंड. क्योंकि एक मोल पर लीटर कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो आएगा वो आएगा मोल पर लीटर
की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। व्हाट इज एन? एन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एन यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर आपको किसी की भी यूनिट निकालनी है तो आप एन की प्लेस पे वैल्यू पुट करो, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। सेम एज अगर हम गैसियस फेस के लिए करें तो वहाँ पे गैसियस फेस में कंसंट्रेशन को प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम। तो इसीलिए हमने इन प्लेस ऑफ मोल पर लीटर यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया? एटीएम 1 माइनस एन पर सेकेंड। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर, the unit of zero order is mole per liter per second. For the first order per second, second order liter mole per second. How can you calculate? तो हमने क्या लिखा? K is equal to mole per liter 1 minus n per second. Suppose n is equal to 0. When n equal to 0, so in place of n, mole per liter 1 minus 0, 1 minus 0, and here is the per second. So unit become mole per liter per second. So this is for the zero order. For the first order, if we take for the first order, n become 1. So the unit mole per liter 1 minus 1 per second, 1 1 0. And if any substance or any value having a power 0, this value become 1. So the unit of the first order reaction is a per second. Per second. Same as for the if n is equal to 2, if n equal to 2, then the unit become mole per liter power 1 minus 2 per second. तो power become minus 1, तो mole per liter power minus 1 per second. तो जो पावर माइनस 1 में है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मोल -1 लीटर पर सेकेंड. तो मोल -1 लीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट फॉर द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सेम एज यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर थर्ड ऑर्डर और एनी फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर. हियर इज द यूनिट इज गिवन फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वैल्यू इज 0.5 सॉरी 1/2. तो फॉर दैट, लेकिन अगर हम इसको चल रहे 1/2 कह रहा हूँ 1.5, तो फॉर 1.5 इज गिवन, in place of 1.5 you can take 0.5 or 0.2, 0.5, any one value of n. In place of n value of n you can take 1.5, 0.5, 2.5, and you can calculate easily the order of the reaction. Next is a distinguish between order of reaction and the molecularity. We have already discussed each and every definition and the point of the order of reaction and the molecularity. बस उसको आप और से देख लो तो they are the differences. हमने पहला पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनिंग क्वांटिटी, बट मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. सेकेंड हमने कहा कि ऑर्डर कैन बी जीरो बट द मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो. इन थर्ड वन वी से दैट may be positive negative, order of the reaction may be positive or negative, but the molecularity cannot be negative, and but it can be positive. And third, more than 3 value of the molecularity की वैल्यू क्या 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ग्रेटर देन 3. तो दे आर द डिफरेंसेस कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में नहीं आएगी. हाँ, पॉजिटिव वैल्यूज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की भी है, मॉलिक्यूलरिटी की भी है. नेगेटिव वैल्यू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती. और ग्रेटर देन 3 वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी की नहीं होती कभी भी, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मोर देन 3. अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इस क्वेश्चन में हमको के की वैल्यू दी है दोनों इक्वेशन के लिए, और कह रहे हैं कि नाउ कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो इन सच केसेस आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली आप उसकी यूनिट देखो कि यूनिट क्या दी हुई है. दिस इज द यूनिट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर and this one is the unit of the
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये यूनिट देख के हम बता सकते हैं आंसर सिंपली कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो पहले का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर बिकॉज यूनिट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड, एंड फॉर द सेकेंड वन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। फॉर अ रिएक्शन A and B product A plus B product the rate law is given are K A to the power half and B to the power 2. What is the order of the reaction? तो अगर इस क्वेश्चन को अगर देखो गौर से तो यहाँ पे हमको पावर दी है। हमने क्या कहा था, what rate is equal to K A to the power X and B to the power Y and order of reaction is X plus Y। ठीक है, तो here already powers are given। पावर कितनी है, हाफ एंड टू। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली 1/2 प्लस 2, इट मीन्स इट बिकम 5/2। तो ऑर्डर बिकम 2.5। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? द रिएक्शन whose actual order is different from that expected by using rate law expression। जो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं उससे उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों होता है? इन सच रिएक्शन वाटर इज टेकन इन द एक्सेस देयरफॉर इट इज कंसंट्रेशन। हियर इन दिस इक्वेशन, स्पेशली इन दिस इक्वेशन, when the hydrolysis of ester is taking place, carboxylic acid and the alcohol will form. In this equation water is taken in a high amount or excess amount। तो जब ओवरऑल कंसंट्रेशन को हम देखेंगे तो इसके कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा चेंजेस के अंदर, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली किस में आ रहा है, एसीटेट में आ रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक कंपोनेंट क्या हो, हाईली एक्सेस अमाउंट में हो और दूसरा क्या हो वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो, तो रिएक्शन हमेशा उस पर डिपेंड करेगी जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंस है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इसमें एस्टर पे डिपेंड कर रही है, एसीटेट पे डिपेंड कर रही है ना, एसिटिक, और ये इस पे वाटर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो इसका जो रेट एक्सप्रेशन में आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, CH3 COO C2 H5 पे डिपेंड करेगा, और इसीलिए इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आएगी, 1। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि तो रिएक्शन इज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बाय यूजिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये तभी होती है जब वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट। तो उसकी प्लेसेस पे हम कांस्टेंट रहते हैं और इसलिए वो क्या कहलाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे इसी को देख लो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो यहाँ पे हमने फिर उसकी से रिएक्शन कराई शुगर की, वाटर से हाइड्रोलाइसिस हुआ, क्या मिल गया हमको, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस मिला, और इसमें भी वाटर प्रेजेंट इन हाई अमाउंट और एक्सेस अमाउंट। तो उसके कंसंट्रेशन को वी कैन टेक एज ए कांस्टेंट और यूनिटी, सो द रेट डिपेंडिंग ऑन ओनली शुगर। So this such kind of reaction is called first order of reaction।